So let's start. We're doing the concept of mutual inductance. As the word mutual comes into our mind, mutual means there should be how many coils? There should be two coils. So there is one coil in which current is flowing. The current is flowing in this coil. Can I say because of this current, there will be a magnetic field? Suppose the magnetic field direction is this way. Near to this coil, there is another secondary coil which is kept here. Yes or no? Can I say the flux is linked with the secondary coil also? Hello? Can I say as the current increases, इसको नाम देते हैं प्राइमरी और इसको नाम देते हैं सेकेंडरी. सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले करंट इन द प्राइमरी increases. Okay. Because of the current in the primary, what happens? A field is generated. The field in the primary will increase. But this field is not only linked with primary, it is linked with secondary. Can I say flux linked with the secondary will also increase? And whenever there is change in flux, what is induced? EMF. And that EMF will give rise to what? Induced current. In which coil? Secondary coil. And this induced current in the secondary coil will oppose the cause. Who is the cause? Increasing current in The primary. Yes. Oppose the cause. The cause is dip by dt is the cause. Yes, sir. Dip by dt. The rate of change of current, the growth of current in the primary is changing. So it will oppose that. And because of that, it will generate a current. Okay. In which direction? Can anyone tell me? Opposite direction. In opposite direction. Yes or no, sir? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If it generates a current in the opposite direction, this way. Can I say if this is the current in the primary, this will be the current in the secondary? Basic rule which we have studied. Okay. This phenomena is called what, sir? mutual induction. Mutual induction. Last time we had finished at self-induction. Today I am going to discuss more two new things. One of them is mutual induction. अच्छा यहाँ पर मेरी बात सुनो. Can I say? अच्छा last time हमने एक चीज पढ़ी थी, याद है? Flux. Phi को क्या बोलते थे? Phi. Flux per turn. No, per turn. याद है? Yes, sir. N phi was called as total flux. Please. Okay. Now I am writing something. Please be with me. Okay, we are doing basic theory now. Can I say NS phi S? What is NS? Number of turns in the secondary. What is phi S? Flux linked with the secondary. Can I say both are this both as a whole is proportional? This is the total flux, na beta? Total flux is proportional to the current in the primary. Yes, sir. Okay, actually N is not proportional, phi will only be proportional, but NS is the total flux. So can I say total flux
in the secondary is proportional to the current in the primary? Hello? Bhai? Yes, sir. Yes, sir. Can I say NS phi S will become equal to MIP? So M will become equal to NS phi S by IP. Okay. लास्ट टाइम हमने यही चीज L के साथ डिफाइन किया था, L के साथ. बट L में जो हम लिखते थे there was only one coil, तो हम क्या लिखते थे N phi by I, because there was only one coil ना, so there was Yes, no sir. condition of S and P. If you remember, L was called as coefficient of self induction or self inductance. वैसे ही M is called as mutual, what sir? Inductance. Inductance or coefficient of what sir? Mutual inductance. Induction, mutual induction. इसका ध्यान रखें. And the unit of M is what? Again Henry. जैसे ओम है वैसे ये हेनरी है, और एक फॉर्मूला बनेगा. You know E is minus d phi by dt. But यहाँ पर we need to be specific. Can I say EMF induced in the secondary is minus d phi S by dt? Because we are interested in EMF induced in the secondary. Achha, what is phi S equal to? We can say this. Na? This is the total phi S. Huh, beta? Hello. So EMF induced in the secondary is minus d by dt of total phi S. What is total phi S from here? Total phi S is this, na? Hello. MIP. 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 M is a constant, will come outside, will become M dip by dt. So EMF induced in the secondary, as I told you, will also be proportional to the rate of change of current in the primary. Yes, sir. Greater is the rate of change of current in the primary, greater will be the EMF induced in the secondary, which is going to oppose the cause. So we Yes. have two formulas over here. M is NS phi S by IP. This is one. And second one, in terms of E, which is ES, is minus M dip by dt. Just remember this thing, please. So what is there? Are you all understanding what's happening? Yes. Yes, sir. Achha, if I want EMF induced in the primary, then how will I write this equation? If the current is changing in the secondary, then what should I write? Minus M dIS by dt. Getting it? Yes, sir. Sure. Can anyone tell me, this is the mutual inductance linked with which coil? Secondary coil. बराबर है क्या? ये वाला. Yes, sir. Can anyone tell me what is mutual inductance of the primary coil? अगर हम primary में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा NP phi P IP upon by IS. Yes, sir. Okay. ये क्लियर है कि सब चीज समझ में आ रहा है ना? खाली Yes, ऐसे sir. Yes, sir. ओके. बट रिमेंबर वन थिंग, दैट ये जो m का वैल्यू है ना, फॉर्मूला में तो हमको क्या मिला कि n भी है, phi भी है, I भी है, बट ये जो m है, ओके, दिस m का नाम क्या है? Mutual induction. Mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस. Mutual Inductance. inductance. It will depend on the dimensions of the coil. Okay, number of turns of the coil and the distance between the two coils. Okay, how they are placed, and ये सब फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करेगा. आपको तो दिख रहा है ना, ये m depends on dip by dt depends on ES.
जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है? रो एल बाय ए। हाँ सर। हेलो भैया, आपको ये फॉर्मूला भी मिला है ना, वी इज आई आर। तो आप कहेंगे आई डिपेंड्स, आर डिपेंड्स ऑन आई एंड वी, आर डजंट डिपेंड ऑन वी एंड आई, बराबर क्या? हेलो Yes, sir. ओके। Yes, sir. R will not depend on V and I. R will depend on rho, that is nature, length and the cross sectional area. वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दोनों कॉइल के बीच में जो होगा वो ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ थियरम कॉल्ड एज रेसिप्रोसिटी थियरम। ओके, which says that mutual inductance of the second with respect to first is mutual inductance of first with respect to second is M. So M is a constant. Hello. Yes, sir. दो कॉइल के बीच में M सेम रहेगा, whether it is linked with first with second or second with first. It will not depend on the previous formulas. Are you all understanding what's happening? ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी है जो dimensions पे डिपेंड करती है। तो अभी हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सी चीज पे डिपेंड करता है, वो हम लोग देखेंगे। पर ये चीज क्लैरिटी होना जरूरी है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करेगा। हेलो Yes, sir. Yes, sir. चलो शुरू करेंगे Sir? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस So, MP and MS that we found by the formula which we got, we can equate them both या यू कैन इक्वेट if we want, like for a या sum or इफ यू something. yeah, but never you do not do like that, you do by another method. Okay, Okay. ठीक है चलो। म्यूचुअल इंडक्टेंस of a solenoid surrounded by a coil, ये सब ध्यान रखने की चीज है बेटा। हेलो याद है हमने लास्ट टाइम L का फॉर्मूला पढ़ा था? L का फॉर्मूला क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड म्यू 0 n स्क्वायर एरिया बाय L। यार हेलो, yesterday, Yes, day sir. before yesterday, Yes. Yes, sir. सब आता है एग्जाम में, प्लीज रिवाइज। एंड नाउ व्हाट इज इट टेलिंग यू, दैट देयर इज अ सोलोनॉइड in which current is flowing. Current is flowing is I, and that is surrounded by a coil. Let his radius be R1. इसका रेडियस कितना है अंदर वाले का? R1. करंट इज I1 and इसका रेडियस इज R2. हेलो, and let the length of this be L. हेलो Yes, sir. ओके, बोलो भाई। Yes. Yes, sir. तो सही है, चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कैन यू टेल मी व्हाट इज द फील्ड ऑफ अ सोलोनॉइड? Mu naught Ni. म्यू 0, वेरी गुड। Ni, छोटो Ni याद है? What does छोटो n stand for? Number of loops per N unit by length. L. Number of turns per unit length. बोलो। Yes, sir. तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू 0 n by L, L is the length, into I. This is B for a solenoid. Step number 1. Okay. Hello. Yes or no? Yes, yes, sir. Yes. Yes sir, yes sir, yes sir. अच्छा एक काम करते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग n1 पकड़ लेते हैं और इसके नंबर ऑफ टर्न्स को n2 पकड़ लेते हैं। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को कितना पकड़ते हैं? n1, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स को कितना पकड़ेंगे? n2। तो ये फॉर्मूला क्या मैनिपुलेट हो जाएगा? n1 हो जाएगा, बराबर है क्या? हेलो, Yes. सेकेंड स्टेप,
What is the The flux length link? will be same for both. नहीं भाई, I am talking about the solenoid only. No, wait. नहीं? Okay. Yes, sir. Yeah. Flux linked with the coil. Flux linked with the coil. What is the flux linked with the coil का formula? AB, NAB होना चाहिए ना? Yes. Hello, that is the total flux. यहाँ हम लोग flux linked with the coil per turn की बात करते हैं. हेलो, अच्छा Yes. किसके साथ में फ्लक्स लिंक किया जा रहा है? Solenoid and coil. Coil. No. Flux linked with the Coil. किसका एरिया लेना है? Coil. किसका एरिया लेना है भाई? किसका एरिया लेना है? बोलो, सही है? Coil. Coil. बट हमको तो पता है कि सोलोनॉइड के अंदर जो है फील्ड होता है, बाहर फील्ड नहीं होता है सोलोनॉइड में. कितना हिस्सा सिर्फ N2 के साथ में लिंक होगा या कॉइल के साथ में लिंक होगा? छोटा एरिया. Yes. अरे इतना ही एरिया लिंक होने वाला है ना, because field is inside only, field will not be outside. Always remember, for outside a solenoid, field is 0. Hello, are you all getting it? तो कितना एरिया लेना है हमको? पाई R1 स्क्वायर इंटू बी क्या है? म्यू 0 N1 I by L. हेलो, yes or no? Yes. Did you understand? Yes, sir. स्टेप नंबर 3, M ढूंढना है. M का फॉर्मूला क्या था? M क्या था? NS phi s upon I. N2 phi 2 by I1. Yes, sir. N2 का N2 लिखते हैं. What is phi 2? Phi 2 ये है ना, यही तो phi 2 है, ये वाला. Yes. Which will become तो phi 1 pi क्या है sir? R1 square. यार बेटा, what is this यार? ये phi 2 है ना, this is the flux linked. इसमें थोड़ी करंट फ्लो हो रहा है. Coil. बाकी phi 1 हम लोग कर coil only ना, this is phi 2 ना. phi 1 कहाँ से आ गया? Yes, sir. Yes. phi 2 is pi R square mu 0 N1 I by L. Okay, and what is I1? I only. Yes, Hello. sir. Yes, sir. This and this will cancel. What is the formula coming? Mu 0 N1 N2 by L into area small. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या फॉर्मूला मिला हमको? mu 0 N1 N2 by L into smaller area. You don't take the larger area. You don't take this area. You take which area? Smaller area. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is the mutual inductance linked with the second coil due to the first coil. Can I say by reciprocity theorem, if the current is changing in the bigger coil and we need mutual inductance of the smaller coil, it will be the same answer? Yes, sir. Mu 0 N1 N2 by L into which area? Which area? Small. Or Smaller. Always use this formula. Always use this. मतलब आपको छोटे वाले को बड़े वाले में लिंक कराना है. हेलो, ये देखो, ये छोटा वाला है ना, इसका छोटा एरिया है, बराबर है क्या? Yes, sir. हेलो, Yes, smaller sir. area, and this is which area? Larger area. area. Bigger area. The formula will come this. Okay. Sir, Hmm. the length has to be taken for what, sir? Like Length is of generally the solenoid. Length is of the solenoid. ये किसका फील्ड है? because of the solenoid. हाँ, तो ये L किसका आएगा? Okay, so which is providing the field, उसका हम लोग length लेंगे, correct? ऐसे कुछ नहीं है. लेंथ तो दिस इज फॉर्मूला. फॉर्मूला के अंदर होना चाहिए ना लेंथ. Okay, समझा बराबर. फॉर्मूला के अंदर ही लेंथ नहीं है तो आप क्या किस लिए लेंथ ले? Correct. Yes, sir. भाई yes or no everyone? हेलो, Yes.
ये सब चीजें याद रखना, बिकॉज ये है ना एडवांस में पूछा गया समय, डेरिवेशन पूछा गया था। ओके, जहां पर ऑलवेज रिमेंबर एरिया स्मॉलर लेना है आपको, यहाँ पर आपको समझ गया इस डेरिवेशन की वजह से। You have to take the smaller area. Some people take the larger area, that is wrong. अभी मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का EMI का एक सम देख रहा था, which I was doing, which I'll be doing on Monday. तो उसमें भी उन्होंने बड़ा एरिया कंसिडर किया, that is wrong. You have to take which area? Smaller area. बस सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं यार, ये पूरा लिंक थोड़ी करेगा, फील्ड तो अंदर ही है, तो फ्लक्स तो इतना ही हिस्सा लिंक करेगा ना। Yes, sir. Are you all getting it? Hello? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। We'll go to the next question. Combination of inductances. जैसे हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल पढ़ा, वैसे हम कभी क्या पढ़ेंगे? यस सर, इंडक्टेंसेस इन सीरीज एंड Parallel. इंडक्टेंसेस इन पैरेलल। अच्छा, क्या सेम है तीनों में? करंट सेम रहेगा ना, सीरीज में तो Yes. करंट सेम ही रहता है। यस और नो? ओके, कैन आई अप्लाई? भाविन, आर यू देयर? Yes, sir. किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लगाओ ए से बी तक। वीए माइनस L1 डी बाई डी टी माइनस L2 डी बाई डी टी। अरे बोलो, Yes, sir. will become equal to what? VB, right? So what will be VA minus VB? Come on, please. क्या है कॉमन? di by dt. डी बाई डी टी इज कॉमन। अंदर क्या बचा? L1 plus L2 plus L3. Can I write VA minus VB as also L equivalent di by dt? Yes. मतलब आई वांट ए और बी के अक्रॉस क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। हेलो, Yes, sir. Yes. so di by dt and di by dt will cancel. So what is L equivalent going to happen? क्या ये किसकी तरह है? किसकी Resistors तरह in है? series. रेजिस्टर्स की तरह ही है। Yes, sir. Remember Yes, it. sir. Similarly, if I go for parallel, if I go for parallel, yeah, parallel L1, L2, getting it? ये आए हैं, यहाँ से बटेगा ना बेटा, I1, I2, I3. Be there with me, right or not? Hello? Yes, sir. अच्छा, can I write current is equal to I1 plus I2 plus I3? Can I differentiate the whole thing? Yes, sir. अब सिंपल बातें हैं। Getting it? Hello? Yes, sir. क्या करेंगे? What is इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? Can I write बेटा I को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय L। Yes, sir. Yes, sir. I को, अच्छा तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? It's constant, same. सेम है ना? Can I write I1 as potential difference V by L1? Hello? I is what? Potential difference divided by what? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. वो ना di by dt is L ना? What is V? What is E?
L di by dt. So what is di by dt only? by D by L. देखो तो ये d by dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? V by L1. by L1, V by L2, V by L3, which will become V by L equivalent. Yes. V and V will cancel. What is 1 upon L equivalent going to happen? You just need to remember the basic formulas and get the resultant answer fatafat. Okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So this is how we remember. I'll just give you the gist of whatever we have done and then we'll go to the next section. सबसे पहले हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में. व्हाट वाज सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला? क्या था? U naught N square E by N. सबसे हाँ, L का फॉर्मूला क्या था? N phi by I. ये पहले पढ़ा था. उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? E is minus L di by dt. प्लीज सब आता है एग्जाम. और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड? टेल मी. म्यू जीरो क्या था? म्यू जीरो N square E by N. area of L which we had done last time. टोरॉइड भी पढ़ा था बट वो ज्यादातर पूछता नहीं है. टुडे वी हैड डन व्हाट सर? म्यूचुअल इंडक्टेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला कमन? M क्या बनेगा? NS phi s upon I. हाँ, NS phi s upon IP. Yes, sir. Okay. Similarly, which can also be written as NP phi p by IS. reciprocity theorem. Can I say EMF induced on the secondary is minus M dIP by dt? Yes, sir. Mutual inductance between a solenoid and a coil. Between a solenoid and a coil. कौन सा फॉर्मूला लेना है? M का फॉर्मूला क्या था? म्यू जीरो N1 N2 Upon area small small. by M. Yes, sir. Hello. Getting it now? Yes. इसके बाद में Yes, हमने sir. इंडक्टेंस इन सीरीज पढ़ा. इंडक्टेंस इन सीरीज व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर L सीरीज? L1 plus L2 plus L3. L parallel 1 upon L parallel. 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3. So these things we have done. Okay. Should I Yes, go sir. ahead? Should I go ahead? Hello. Last दो sections बाकी है. That I'll finish it off. देखते हैं. Clear है ना? Yes. Now we are going to study a very important section. Pay attention. उसको कहते हैं growth and decay in an LR circuit. Hello. Growth and decay in an LR circuit. We have studied growth and decay in CR circuit. Hello. Yes. आवाज नहीं आ रही. So this is the battery. So पढ़ेंगे. E switch है. S resistor and inductor. अगर हम स्विच बंद करते हैं करंट ऐसे जा रहा है. हेलो. स्विच जब बंद करेंगे बेटा करंट ऐसे जाएगा. एनीवन कैन यू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ? प्लीज अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. E minus IR प्लस E minus IR. minus IR L then di by dt. Yesterday I taught you this thing. Please. Hello. Hello. Yes, sir. Now क्या हो जाएगा? Can I take E minus IR
will become equal to L di by dt. Yes. So dt by L will become di upon E minus IR. 0 to t, 0 to I. Hello, yes or no? Yes, sir. तो यहाँ पर when I get the final result, I will be E by R 1 minus e raised to minus t by L by R. ये हमको मिला. ln आ जाएगा ना, ln of E minus IR, okay, into derivative of that, तो will become minus R. बराबर क्या, इधर तो 1 Yes, upon sir. L आ जाएगा. Yes, और sir. उसको anti log if you take, you will get the resultant answer. अच्छा, यहाँ पर can I write this as, सुनो ये याद करना पड़ेगा सबको. I को I, E by R को लिख सकता हूँ I naught, maximum Yes, sir. value Yes, sir. Yes, sir. 1 minus e raised to minus t by tau. हेलो, tau, tau का नाम क्या है, याद है आपको? नाम तो याद है, Time constant. Time constant. टाइम कांस्टेंट L by R. Over there the time constant was what? Remember CR. हाँ CR. Yes. RC. CR, RC या CR जो भी आपका. अगर इसका ग्राफ हमको बनाना है, इसका ग्राफ अगर आप बना सकते हो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा. I वर्सेस T. ओके, मैक्सिमम वैल्यू कितना I नॉट है. हेलो, ये ऐसे. अच्छा, कोई बता सकता है ये क्या होता है? टाइम कांस्टेंट दैट इज L by R पे, टाउ L पे क्या होता है? उधर था टाउ C, याद है ना, टाउ C. Yes, sir. इधर रहेगा टाउ L. टाउ L पे कितना चढ़ेगा याद है? 0.63 टाइम्स ऑफ I नॉट. Yes. Because if I put the value of tau L in t, it will be e raised to minus 1, and e raised to minus 1 is 0.37. We had done this thing last time also. Yes, sir. Yes, sir. It is not ठीक है, जरूरी नहीं है. अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनो मेरी बात. Can I say इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में what is the power emitted by the battery at any instant? EI तो पढ़ा है ना पहले. हेलो 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 हेलो. Yes, sir. Power emitted by the battery at any instant is EI. What is the power consumed by the resistor at any instant? I square. Very good, very good. आता तो है सब यार. I square R. Okay. अभी देखो, ये जो दे रहा है वो ये दोनों ले रहे हैं. हेलो, Yes. पावर जो बैटरी दे रहा है that is EI is taken by whom and whom? Is taken by R and L. R and L. R and L. Okay. अभी what is the power consumed by, बोलो कौन है वो दूसरा वाला? या power in and what sir? Inductor. Inductor. di by dt the whole. क्या? नहीं नहीं नहीं. EI minus I D, square R. एक मिनट. D by dt of energy stored. अरे power is rate of change of energy ना. हेलो, Yes. Yes, sir. क्या हो रहा है यार, बोलो ना. हेलो, Yes. sir. एनर्जी Yes, हमने sir. लास्ट टाइम पढ़ा था, इट वाज हाफ Li स्क्वायर. सर ये कहाँ से आप कुछ भी बोल रहे हो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका डेरिवेटिव लो I के साथ में, बिकॉज I चेंज हो रहा है ना हर समय. तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव लेंगे तो 2I di by dt. हेलो, आई डोंट नो यार, क्या कर रहे हो? पावर क्या हो जाएगा इंडक्टर में? D by dt of this will become half L कांस्टेंट है ना.
Yes, हो sir. जाएगा 2i di by dt. 2 cancel. So what is power stored in an inductor? Li di by dt. Hello, what is happening? Yes, sir. So can I say जो power बैटरी ने दिया that is ei, दो पार्ट में बढ़ गया. एक तो i स्क्वायर r से उड़ रहा है, दूसरा कितना खर्च हो रहा है L di by dt. ये Yes, sir. दो भाग हो रहा है ना पावर के. तो yes or no? Yes, sir. Yes. Hmm. Can I say the instantaneous rate at which power is delivered by the battery is equal to the instantaneous rate which is power is dissipated by the resistor plus the rate at which the energy is stored in the Capacitor, inductor. inductor. Hello, Yes, sir. this is power delivered by whom? बोलो यार Battery. क्या बोलते हैं battery. This is by battery. This is power, okay, power consumed by resistor, Resistor. and this is power consumed by inductor. Law of conservation of energy match होना चाहिए ना सब जगह पे. Yes, sir. क्लियर हो गया ठीक है. clear. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आगे और आगे हम लोग जाएंगे ताकि आपको बात समझ में आएगी. ये चीज तो हो चुकी. Sir, can you go to previous slide? या बेटा I'll go one sec, just wait. Done, sir. ये फॉर्मूलाज दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए उनका. दोनों एक ही है एक्चुअली, ये आएगा. ओके हेलो. Yes, sir. अच्छा और एक चीज थोड़ी डिस्कस करनी है. इसमें टाइम जीरो डालू मैं, इस चीज में टाइम जीरो डालू तो क्या हो जाएगा आंसर? करंट विल बी जीरो ओनली ना. Yes, sir. e raised to 0 minus 0 is 1. e raised to 0 is 1 ना. टाइम जीरो डालो यार. कर रहे हो Yes. हेलो. e raised to 0 is 1. 1 मतलब 1 minus 1 0, so current will become 0. मतलब can I say at time 0 inductor will act as Short circuit. no Open. as भाई Open circuit. Open. उल्टा ऑफ कैपेसिटर, याद रख लो. Yes, sir. याद है ना कि वो भी भूल गए भाई. Ravi, remember समझ आ गया? आगे yes. Yes, sir, understood. Now we are doing So, sir, then at time infinity. करते रुको डीके ऑफ करें. टाइम इन्फिनिटी क्या होगा? एक मिनट. टाइम इन्फिनिटी क्या होगा? आप पुट करके देखो ना. टाइम इन्फिनिटी पुट करो. करंट विल बी आई जीरो. Yeah. टाइम इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा ना बेटा. अगर ये इन्फिनिटी पुट किया तो ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है. करंट कितना हो जाएगा? आई नॉट. तो आप क्या बनाएंगे इधर से? इंडक्टर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. Yes. पूरा करंट फ्लो हो रहा है ना. हेलो, रिमेंबर दीज लाइंस बेटा. हेलो, गेटिंग इट? So, Yes, sir. प्लीज क्वेश्चन बहुत बहुत वास्ट है. मतलब सिखाते जाओ आपको याद तो करना ही पड़ेगा. ओके आई एम डूइंग द डेरिवेशंस आल्सो ताकि आपके थोड़ा क्लैरिटी आ जाए. बट आपको तो यही चीज याद रखनी है, 1 2 3 बस. ये सब डेरिवेशन कहाँ से आया? किधर? नहीं है. कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है. कभी आया है डेरिवेशन नीट में? कुछ नहीं आया. कभी देखा है आपने 1 साल में? नहीं देखा है. no. ओके फिर आपको समझ आएंगे. वो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा. दैट इज नो अदर वे आउट. आई एम डिस्कसिंग डीके ऑफ करंट. अच्छा, डीके ऑफ करंट में क्या हो रहा है कि आपने बैटरी को निकाल दी. ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है, और आपने इसी को शॉर्ट कर दिया. बोलो. Yes, sir. अच्छा, हमको मालूम है, हमको पता है कि इधर है ना एक एनर्जी स्टोर हो जाती है. कितनी? Half a Half light. Half L square. L I नॉट स्क्वायर. क्योंकि मैक्सिमम करंट कितना था इसके पास? I नॉट था ना. I Yes, not. sir. तो I By नॉट जब R. चढ़ गया तो
एक मिनट, आई नॉट जब इस पे चढ़ गया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई हाफ एल आई नॉट द होल स्क्वायर, फिर ये शॉर्ट हो गया ना, पीछे तो पड़ा अभी, शॉर्ट होने के बाद में ये अपना अपना एनर्जी लेके बैठ गया। ओके, अब जैसे मैंने बैटरी को बंद कर दिया, मतलब बैटरी निकाल दिया यहाँ से, तो जो करंट फ्लो हो रहा था ना यहाँ से, हेलो, तो आई नॉट करंट फ्लो हो रहा था ना, यहाँ पे बैटरी थी ना इमेजिनरी, हेलो, यहाँ पर इमेजिन करो, ये Yes, बैटरी, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये स्विच था यहाँ पे, मैंने स्विच को अचानक खोल दिया। स्विच को खोल देंगे तो बैटरी का वजूद नहीं रहेगा, बैटरी नहीं रहेगा, इमेजिन दिस विल बी नथिंग इज देयर, गेटिंग इट? हेलो, एनर्जी भी स्टोर नहीं होगा ना सर? अरे भाई रुको, दैट ओनली आई एम टेलिंग यू। सो यहाँ पर ये चीज थी, आई एम क्लियरिंग इट आउट अगेन सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। अब हमने क्या किया, ये जो एनर्जी थी इसके पास और ये जो रेजिस्टर था इसके पास एनर्जी कितनी है, हाफ एल आई नॉट द होल स्क्वायर, हमने शॉर्ट कर दिया अचानक इसको साथ में, गेटिंग इट? Yes, sir. यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था आई नॉट, ये आई नॉट डिक्रीज होना शुरू होएगा ना। Hmm. हेलो, Yes, sir. ये इंडक्टर जो है ये ऐसे नहीं चाहेगा बिकॉज इट इज अपोजिंग द Cause कॉज, so then it will it will provide the current in the same direction. same direction. Yes. ये बोलेगा भाई आप टेंशन मत लो, आई नॉट आप टेंशन मत लो, आप कम हो रहे हैं आई नो, बट मैं आपको कम नहीं होने दूंगा। बढ़ने के टाइम पे क्या बोल रहा था, मैं आपको बढ़ने नहीं दूंगा, अब क्या बोल रहा है, मैं आपको कम नहीं होने दूंगा, आई विल अपोज द कॉज। सो कैन आई से ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी में हमको दिखाई देगी बदलने Electric. के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हुए दिखाई देगी। Yes. हेलो, Yes. यस और नो? तो इसके वजह से करंट फटक करके जीरो नहीं होगा, करंट आहिस्ता आहिस्ता जीरो होगा, क्योंकि ये देखो एंड में करंट जीरो होना ही है, इसको कितना वैल्यू हो जाना है, जीरो हो जाना है, Zero. जीरो हो ही जाना है। ओके, ये बोलेगा जब तक मेरे बस में है तब तक मैं बचाऊंगा, एक बार मेरा एनर्जी खत्म हो गया तो देन आई कांट डू एनीथिंग, बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. बिकॉज हु इज द डोमिनेंट थिंग, डोमिनेंट इज द बैटरी, बैटरी तो चला जा चुका है, ये बोलेगा मेरे बस में जितना है मैं हेल्प जितना कर सकता हूँ आपको मैं हेल्प करूंगा उतना। ओके, एंड आई विल गेट ड्रेन्ड आउट एंड आई विल गेट ड्रेन्ड आउट, एंड व्हेन आई एम टोटली ड्रेन्ड आउट द करंट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? हेलो, Zero. जीरो। Zero. You understanding what's happening? So but Yes this or is no? only possible in a millisecond scale, right? Nanosecond scale, millisecond हाँ. scale, picosecond scale, but it is there. Yeah. फिजिक्स में हम लोग हमेशा माइक्रो मैक्रो की बात करते हैं ना बेटा, बड़ी चीज को भी बात करते हैं, छोटी चीज की भी बात करते हैं, बात तो करते ही है। Yes. चलो इधर ध्यान दो, तो कैन आई अप्लाई किरचॉफ लॉ ओवर हियर, ये एल है, कैन आई से इट विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, हेलो, इज इक्वल टू Yes. जीरो, हेलो, Yes, sir. माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू व्हाट सर, जीरो। Yes. बोलो, गेटिंग इट? कैन आई राइट दिस एज, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस एल, अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ है, बुक के अंदर भी गड़बड़ की है, डी आई बाई डी टी यहाँ पे नेगेटिव लेना चाहिए कि ये पॉजिटिव लेना चाहिए? Negative because it's Negative. decreasing. Decay of. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes. Yes, sir. वरना गड़बड़ बने, डेरिवेशन आप करते रहो इंटीग्रेट करते रहो, आपको वो आंसर आएगा ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, प्लस आई आर बराबर, क्या उधर Yes. लेकर गया, इसको इधर रहने दिया, तो ये क्या हो गया, Plus L di by dt equals to plus I. सही है ना, ये उधर लेकर गया, तो ये क्या हो गया, प्लस एल डी आई बाई डी टी, गेटिंग इट? Yes. Yes, sir. इज इक्वल टू IR. आई आर। Are you all getting it right? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट
ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, करेंगे ना? Yes, Yes, sir. sir. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट मारेंगे, डी बाय आई एंड क्या हो जाएगा, डी टी इंटू आर बाई एल। सही है क्या? Yes, sir. ये देखो कौन है ये, व्हाट नॉनसेंस इज दिस राजवीर? It आपके वहां wasn't से me, आवाज, sir. No, sir. I'm sitting alone. फहद काजी है फिर। फहद, हाँ निकाल दूं मैं? ठीक है चलो शुरू करते हैं। दो जन का आवाज आया था, फहद काजी एंड राजवीर। आई थिंक राजवीर वाज माइक वाज ऑन। ठीक है जो भी है, टाइम वेस्ट मत करो यार, अभी क्या है, एग्जाम का टाइम है, इधर ध्यान दो। ये क्या मतलब, डी आई बाई आई। अच्छा आई की लिमिट्स क्या रहेंगे एंड आर की लिमिट्स क्या रहेंगे? I will I be कहाँ from से I कहाँ naught तक? to 0. हाँ वेरी गुड, ये आई नॉट टू जीरो हो जाएगा, यस और नो? या आई नॉट टू आई लेते हैं हम लोग, बिकॉज वी डोंट नीड ना, वी नीड इंस्टेंटेनियस करंट ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एंड ये हो जाएगा 0 टू टी। T. ये क्या हो गया, डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी आई बाई आई इंटीग्रेशन, यार तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ ना। एल एन आई, I एल एन आई, एल एन Yes, आई, कैन आई राइट दिस एज एल एन आई बाई आई नॉट? yes, प्लीज टेल मी व्हाट इज करेक्ट और रॉन्ग यार। ये क्या हो जाएगा, आर टी बाई एल बराबर क्या? yes, ये सही हो रहा है क्या? sir. आई नॉट टू आई एंड ये हो जाएगा 0 टू टी। एक मिनट, आई जस्ट कम 2 मिनट्स। हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. Yes. Sir. ये डेरिवेशन हम लोग है ना फिर से करते हैं, बिकॉज यहाँ पर है ना माइनस साइन का एक थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ध्यान दो, ये डूइंग डीके ऑफ करंट, फटाफट करते हैं। सी दिस वाज द इंडक्टर, दिस वाज द रेजिस्टर, ये बंद कर दिया था। ये इंडक्टर के पास एनर्जी थी एंड दिस वाज
a resistor. Now pay attention over here. इसके पास energy थी भरी हुई थी. How much was the answer? Half L. Half L I square. I naught square. Now when this current बेटा decreases, अब मेरी बात सुनना, थोड़ा complicated है. When this current starts decreasing, what happens to what will the inductor say? It opposes the cause, so It will what will it do? support, like it goes to the same direction. Yeah. Can I say it will act like a battery this way? जिसका EMF क्या रहेगा? LDI/dt. Hello? Yes. Hello? Yes or no? Yes. Yes, sir. क्या आप मानते हो ना, इट इज एक्टिंग लाइक अ बैटरी? ये बोलेगा मेरे ओके मैं सप्लाई करूंगा. आई ऑल गेटिंग इट? हेलो? Yes. Yes, sir. यहाँ पर अभी एक काम करो, करंट घुमाओ. यहाँ पर आप उंगली घुमाओ, यू विल गेट द रिजल्टेंट वोल्टेज लॉ. अप्लाई करो. कैन आई से क्या हो जाएगा? प्लस LDI/dt माइनस IR Minus IR. इज इक्वल टू 0. हेलो? Yes, sir. Yes. डिड यू अंडरस्टैंड? ये समझ आया? Can I Yes. write this as LDI/dt will become equal to IR? But DI/dt is negative ना, सबको मालूम है ना? Yes. ये लिखा जाएगा minus DI/dt. Yes, what happened? So why did you take plus di/dt? It's going in the current direction, no? अरे भाई ये It बैटरी comes की out from तरह the है कर. अरे plus battery, direction. sorry, yeah. ठीक है, is equal to, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, वो DC पांडे में दिया ही नहीं है. ओके, इसलिए I got another book and I referred to that. तुमको समझ में आया क्या हो रहा है? Yes, sir. Yeah. Yes. DC पांडे follow, DC पांडे if you follow you will get confused in this. ठीक है? Can you? ये समझ है? हाँ, फिर से देखो बेटा, इसके पास एनर्जी भरा हुआ था, बराबर? Yes. करंट जो है इधर से कम हो रहा है, तो ये क्या बोलेगा? व्हाट विल द इंडक्टर से? Provide the energy. हाँ, आई विल प्रोवाइड द करंट. आई विल provide the current in the same direction. Hello? Yes, sir. So can I say that will act like a battery in this polarity? Yes, sir. Yeah. अब Yes. किरचॉफ लॉ घुमाओ जल्दी. Mm. Plus E minus IR is equal to 0. 0. Yeah. But E is LDI/dt. But DI/dt is positive or negative? Negative. सबको समझ में आया ना ये चीज? हेलो? Yes, sir. अब ये माइनस साइन का प्रॉब्लम खत्म हो गया. ये क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा अभी माइनस DI/I फ्रॉम I0 to I is equal to क्या भाई? dt R/L. हेलो? इसको इंटीग्रेट करो फटाफट यार, करो ना फटाफट इंटीग्रेट. क्या हो जाएगा? ln I Yes, sir. माइनस ln I ये हो गया. विल बिकम कहाँ से कहाँ तक? I0 I I naught to I. और ये हो जाएगा R/L into T. Yes. ये माइनस साइन उधर ले लो, ये हो जाएगा. इसको लिखो ना यार, ln So we can take minus I in upon the I ln naught only, no? minus R/L into T. Yes. Can I write this as I/0 e raised to minus R/L into T? So I will become I0 e raised to minus R/L into T. Hello? Yes, sir. Yes, sir. So this could also be written like this. I is I0 e raised to minus T by tau L. And what is tau L? L by R. Yes. Getting it? Okay. Yes, sir. ये ठीक है. अब ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है कि डिक्रीज है? Decrease. एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. पहले इट वाज I T I0 ऐसे जाएगा ना बेटा? हेलो? Yes. So this was all about which current बेटा? डीके ऑफ Decaying करंट. कोई डाउट है तो पूछो. आई डोंट थिंक सो. So Yeah, you are that's at t is equal to tau, we'll have 0.37, no? 0.37. yes. At t is equal to tau you will have 0.37 I0. क्लियर है ना ये सब चीजें?
तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला, ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा. गेटिंग इट? हेलो. Yes. Yes, sir. दिस इज all about increase and decrease of current. अब sums करेंगे इसके ऊपर हम लोग. So one sir. हाँ बेटा. I just do the sums so that you all can understand. Electromagnetic induction. अच्छा, tomorrow morning, huh? Tomorrow morning? Sir, tomorrow advance will be there in the evening. Yeah. Why not? कुछ है क्या तुम लोग को? I think the festival is going on. Yes. Tomorrow last day, sir, position. ठीक है, you all tell me if you all are not comfortable because 11th standard also requested, so we had shifted to Sunday. अगर एडवांस लेक्चर, कल सुबह का लेक्चर कैंसिल नहीं होगा ना बेटा? सुबह का तो ठीक है ना? No, morning is fine, sir. सुबह में ठीक है ना? Sir, advance, could you take it right after means like? नहीं, सुबह में पॉसिबल नहीं होता बेटा. सुबह में it is not possible. Okay. So like in the morning, like before 1-2 o'clock, ऐसा. देखते हैं, चलो प्लान आउट करते हैं, but generally it is not possible. किया था लास्ट टाइम. कितने एक्सरसाइज? आई थिंक सो सम we had done a couple of questions which were So 27.4 we have to start. we had done till self inductance. We are starting with the sums based on mutual inductance. Yes or no? Last time हमने self Yes, inductance yes, खत्म कर लिया था, and we are starting with mutual inductance so that you all can get it. ये सब हो चुका था, सबको आता है ना भाई? ये भी किया था, याद है ना? ये सब Yes, sir. अच्छे कैटेगरी के Yes, सम्स sir. है, सब अच्छे कैटेगरी के वाले सम्स है. सेल्फ इंडक्टेंस हो चुका था, म्यूचुअल इंडक्टेंस. चलो शुरू करेंगे. हेलो. Yes. Is there, no? So we'll do two स्टार्ट करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला, calculate the mutual inductance between two coils of current 4 ampere changes to 12 ampere in 0.5 seconds in primary and induces this much in the secondary. Also calculate induced EMF in the secondary if the current in the primary changes by from 3 ampere to 9 ampere in this much. तो बता सकता है कौन से टाइप का समय है? क्या करना है? पहला टाइप अगर हमको बात करनी है तो EMF किस में चाहिए हमको? जरा देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, बराबर है क्या? Yes, sir. Can I say E is M di by dt? Yes, sir. Can I write this as EMF induced in the secondary? यहाँ पर current in the primary रहेगा. बोलो.
Yes. अच्छा पहला दो लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो हाउ मच इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी? 50 millivolts. 50 millivolts. 50 millivolts. 50 into 10 is to minus 3. M का पता नहीं है. How much is the change in current in the primary? 8 by Hello? 0.5. 8 है. Change हुआ. And कितने टाइम में? 0.5. यहाँ से M आपको मिल जाएगा. That will be तो भी आएगा 3.125 मिली हेनरी. हेलो. Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट के बाद में ना उसका बेसिक सम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द हायर लेवल क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? ऑल्सो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस. अच्छा एम मिल गया ना, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो. हेलो. Yes. एम कितना है? 3.125 मिली हेनरी माइनस 3. डीआई कितना है अभी? 966. By 0. वोल्ट में आ जाएगा 0.93 वोल्ट. हेलो. Yes, sir. We are just doing the practice of E is minus M di by dt. Minus sign only indicates it is opposing. बाकी और कोई रूल नहीं है. And whenever we are finding magnitude of EMF. I all understanding ना बेटा? चलो Yes, आगे. sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 18. A coil has number of turns 600, which produces flux per turn is 5 into 10 raised to minus 3 Weber per turn. When a current is how many ampere? 3 ampere. तो ये सब चीज जो हो रही है वो प्राइमरी में हो रही है अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी. दिस प्रोड्यूसेस दिस मच टर्न्स. सो फ्लक्स इन द सेकेंडरी 6 into 10 is to minus 3 Weber per turn. Number of turns in the secondary कितना है? 1000. When the switch is open, the current drops to 0. Current, final current कितना है? This is the initial current. Final current कितना हो गया? 0. Initial current ये है. Okay, final current is 0. So can I say DI will be 3? Yes, sir. Change in current. And DT कितना है? 0.2. 0.2. ये सब चीजें मुझे पता है. हाँ वेरी गुड. चलो आप लोग आंसर देना. आता तो है सबको. म्यूचुअल इंडक्टेंस ढूंढना है. Which formula? NSO. Minus by IT. Can I write this as N2 phi 2 by I1? Yes, sir. Hello, are you all getting it? Yes, sir. यही लिखना पड़ेगा ना, दूसरा कोई चारा नहीं है. You cannot write N1 phi 1 by I2 because I2 है ही नहीं. अरे यार. Yes. Yes, sir. ये सब ये प्राइमरी में फ्लो हो रहा है ना. N2 phi 2 1000 into 6 into 10 is to minus 3 by I1. I1 is 3. You will get 2 Henry. क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Induced EMF in the secondary. Which formula? M dIP by dt. Yes. EMF is induced in the secondary where the rate of change of current is happening in the primary. This phenomena is called as mutual inductance. Yes or no? Yes, sir. M तो मिला 2 because reciprocity theorem से M constant रहने वाला है. DIP कितना है? 3 है by 0.2. 10 हो गया. ये हो गया 30 वोल्ट. हेलो. तीसरा वाला क्या बोल रहा है? The self inductance of the primary coil. L ढूंढना है. L का फॉर्मूला क्या है? N phi by I. बट ये प्राइमरी है तो ये भी पूरा प्राइमरी रहेगा ना. हेलो. सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है ना. Yes, sir. तुम लोग यार म्यूचुअल के बारे में मत सोचो ना. क्या हो गया ये? N क्या है? 600 600. So 5 into 10 is to minus 3. 2.3. Answer will again come in Henry. Getting it? 1 Henry. You will get 6 5 30 as 1 Henry.
हेलो भाई Yes. बोलो, बेसिक बेसिक प्रैक्टिस हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. ये नीट और सीईटी का लेवल है ऐसे क्वेश्चंस का, जो आपको क्रैक करने आना चाहिए वो टाइम पे। चलो आगे यार, ये वही है, पढ़ के देखो ना यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। इज इट द सेम? हु इज देयर? परी इज देयर? परी, Yes, sir. परी देखो जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या क्या दिया है। टू कॉइल्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम दिया है। अच्छा एम सेम रहेगा दोनों में। Yeah. करंट I1 इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 830 एम्पियर पर सेकंड। ये क्या दिया हुआ है? Di by Di by dt. dt. DI by डी dt. डी 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 टी आपको सीधा सीधा दे दिया है उन्होंने। Yes, sir. टेंशन है। पहला आंसर क्या रहेगा? पहला पहला ऑप्शन अगर हमको करना है, Is मैग्नीट्यूड ऑफ m इंड्यूस्ड di ईएमएफ इन by द dt. एम डी आई पी बाई डी Dip टी। by dt. कैन यू डू इट? बराबर क्या? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा सेकंड वाला क्या बोल रहा है? Suppose the current described in the secondary coil rather than the first. What are the induced EMF in the first coil? तो EMF induced in the क्या चाहिए? EP is Primary equal will to become DI, ds by but M dt. तो सेम है और DIP by dt भी सेम है, तो ये भी आंसर सेम ही आएगा ना, Yes, sir. Yeah. because same current is changing ना, देखो ना। Okay, suppose that the current described in the first coil rather than, तो same current is described in the first coil or the second coil. Getting it? Yes. Yes, sir. Both the answers will be 0.27 volt. बोलो, Yes. ये कोई टाइम पास वाले सम्स है यार। आगे बढ़ता है, ठीक है? हेलो, Yes, sir. तो चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम लोग। द लास्ट सेक्शन विच आई विल बी डूइंग टुडे, एंड देन टुमारो मॉर्निंग आई विल कंटिन्यू विद 2 अदर सेक्शंस एंड वी विल फिनिश इट ऑफ EMI, एंड उसके बाद में उसके एक्सरसाइजेस पूरा नेक्स्ट वीक हम लोग को सॉल्व करना है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ करंट, याद आ रहा है? Yes. राइट। अच्छा आई का फॉर्मूला क्या था चार्जिंग में? I is equal to I I naught naught 1 1 minus minus. e raised to minus t by tau L. Yes. Remember tau L was L by R. Yes. अच्छा डीके में क्या था? डीके में कौन सा फॉर्मूला था? बोलते नहीं I हो। equals to I naught e raised to minus t by tau. I is I naught e raised to minus t by tau L. अच्छा what is I naught? E by R. E by. भाई आपको आए कि नहीं आए, ये दोनों फॉर्मूलाज तो आपको आना चाहिए। डेरिवेशन जाने दो, और डेरिवेशन ना तो आपको बोर्ड्स में भी नहीं है तो। अच्छा पहला वाला क्या बोला? शो दैट L by R is a क्या? Unit of. यूनिट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली पहली चीज हमने टाइम कांस्टेंट पढ़ा। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? L by R ही होता है। Yes. अगर आपको प्रूव ही करना है, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो प्रूव करना है, सर मुझे तो प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे यार? कैन आई से डीके के टाइम पे कौन सी एनर्जी में बदली थी? डीके के टाइम पे Magnetic to electric. मैग्नेटिक टू Electric. रेजिस्टर में जाती थी, बराबर है। रेजिस्टर में जो एनर्जी जाएगी दैट फॉर्मूला इज I square RT। Yes, sir. अरे यार अभी सिखाया मैंने यार, बोलो ना। Yes, sir. मैग्नेटिक एनर्जी, पूरी एनर्जी कौन सी एनर्जी में बदलती है? रेजिस्टर के पास कौन सी एनर्जी रहती है? I square RT। अब कैंसिल कर दो सब, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो R by L क्या हो जाएगा? R by L 1 by 2. L, हाँ 1 by T हो जाएगा। हेलो, Yes, sir. तो टाइम विल बिकम L by R ना। Yes. गेटिंग इट? Yes, sir. हेलो, एंड टाइम कांस्टेंट और एक चीज था, याद है? RC। Yes. याद रखना, द डायमेंशंस ऑफ टाइम, डायमेंशंस ऑफ RC एंड डायमेंशंस ऑफ L by R will be the Same. Same equal to t raised to very 1. important. Okay, so that is the thing. So one sec. I हाँ just बेटा take. पीछे है, yeah. Yes sir, yes sir. Done, sir. 21st, a coil of inductance L दिया,
L दिया है, कितना है L? Resistor 10 ohms are in series with the circuit with an open key of coil. कितना है E नॉट या E? 100 volt, बराबर क्या? Yes, sir. Negligible resistance. At time 0 the key is closed. अभी ओके स्विच बंद कर दिया था, याद है E था, Yes. Yes, sir. स्विच था, स्विच को कनेक्ट करके बंद किया, ये R और L था। अभी डेरिवेशन के साथ में हमने सब कुछ कर लिया, तो कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। ये स्विच बंद किया टाइम 0 पर, जैसे स्विच बंद किया सबसे पहले तो क्या पूछा, टाइम कांस्टेंट निकालो। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? L by L by R. R कितना है? 10 है, 0.2 सेकेंड्स, बराबर ना? Yes. yes, सेकंड है sir. ना? मिल गया। द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट आई नॉट E बाय R। अरे व्हाट मैंने Yes. अभी तो सिखाया, E बाय R। E बाय R तक ही चढ़ेगा ना एंड में, तो Yes, sir. कुछ भी हो जाए, कितना भी देर लगे, एंड में तो E नॉट आई नॉट तक ही चढ़ना है उसको। Yes, ओके, sir. ये कितना हो जाएगा? 10 ampere. क्या पूछा है? द करंट इन द सर्किट एट, वन सेकेंड, अब मेरी बात सुनो। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस ग्रोइंग ऑफ करंट का फार्मूला? I is equal to I. 1 minus बराबर e क्या? raised to minus. Yes, sir. अच्छा, आई नॉट कितना है? 10। 10. 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी। टी कितना चाहिए? 1. 1 sir. 1। एंड टाउ कितना है? 0.2. 0.2. 0.2। कैन आई से दिस इज 10, 1 माइनस ई रेज टू माइनस 5। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. बराबर क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पर ई रेज टू माइनस 1 कितना होता है? 1 अपॉन ई रेज टू 1 या ई रेज टू माइनस 1 हम अगर बात करें तो इट इज 0.37। Yes, sir. हेलो, ये तो याद होना चाहिए यार। हेलो, Yes, sir. तो ई रेज टू माइनस 5 कितना रहेगा? ई रेज टू माइनस 1 रेज टू 5 ना? Yes, sir. Multiple. ये लॉग से निकालना पड़ेगा भाई, करेक्ट है क्या? 5 Yes, लॉग sir. ऑफ दिस थिंग, उसको 1 से माइनस करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। साइड में क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ई रेज टू माइनस 5 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। ओके, डॉक टेबल वॉक टेबल यूज करने का टाइम थोड़ी है हमारे पास। हेलो Yes, sir. यार, बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ई रेज टू माइनस 5 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो 1 को माइनस कर देना, उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। Yes. We also have value of I naught, no? So like वैल्यू ऑफ I naught. आई नॉट तो मिला ना, 10 एम्पियर। हाँ, हाँ, e raised to minus 5 will be, I think, very very small. Okay, very very small आएगा ना? Yes. ठीक है। So the t is equal to 0 is given, so we don't have to consider it's open circuit. t is equal to 0 पे बंद किया ना, आगे पढ़ो। Okay. So, हम्म, so in the capacitors, we have discussed something that at t is equal to 5 seconds, something it becomes infinite. 0.999%. that is the what was the definition of the current? उधर formula of current was I is I naught e raised to minus t by tau c, ये था भाई, Yes, sir. Yeah. 1 माइनस नहीं था। हेलो, Yeah, sir. मिक्स मत करो। ओके, So the answer is 0.00693. ठीक है। No, not of this, of e raised to 0.37 raised to 5 का. अच्छा, ये वाला, हाँ. तो 1 से माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 10 करना, ठीक है ना? हम्म। हेलो, Yes, sir. ये मिल जाएगा। अब आगे, हेलो, आई विल अंडरस्टैंडिंग, राइट? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप एंड विल पैक अप। 2 सेक्शन ही बाकी रह गए, तो ज्यादा कुछ बाकी नहीं है। इन अ सिंपल LR सर्किट,
can induced EMF across the inductor be ever greater than the EMF of the battery? देखो ये बैटरी है, ये LR सर्किट है. हेलो, Yes. चलो किरचॉफ लॉ घुमाओ, लगा सकते हैं क्या? E will become yes or no? Yes, sir. तो ये जो बैटरी का EMF है ये L di/dt का टुकड़ा है प्लस IR का टुकड़ा है ना. हेलो, ये Yes. समझा गया, ये समझा गया. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये तो किया है हमने. अब जरा क्वेश्चन Yes. पढ़ो. ये कह रहा है बैटरी का EMF, ओके, इंडक्टर, ये किसका, ये बैटरी का EMF है, बराबर है क्या? Yes. ये किसका EMF है? इंडक्टर का EMF है. Inductor. ये रेजिस्टर का EMF है. सही है क्या? Yes, Yes, sir. EL कभी ज्यादा हो सकता है E से. No. नहीं. ओके, Yes. are you all understanding what's happening? VL, Yes, sir. can it be? No, sir, it can't. सही है ना? Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज है, ये सब इजी बात है. अभी 2 सेक्शंस बाकी हैं, बिकॉज मैं शुरू करूँगा तो कम से कम हाफ एन आवर लगेगा उसमें. आई एम नॉट स्टार्टिंग ओनली. पहला वाला सेक्शन इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. आई जस्ट डिस्कस इट थोड़ा सी. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है. एंड सेकंड वन इज ऑसिलेशंस इन LC सर्किट. LC सर्किट, आपने ऑसिलेटर का नाम सुना रहेगा शायद, वीराव सर ने बोला है आपको ऑसिलेटर. हेलो, Yes. बोला है Yes, sir, क्या? I've ये heard. चीज ये कल सिखाऊंगा मैं. ऑसिलेटर जो होता है वो कल डेरिवेशन के साथ में पूरा सिखाऊंगा. तो दिस विल फिनिश योर EMI इन सैटरडे. टाइम टेबल मैंने भेज दिया है आपको, सितंबर का टाइम टेबल, टेस्ट टाइम टेबल. हाँ, So in the timetable 29th Tuesday लिखा है. नहीं नहीं, वो 29th ट्यूसडे नहीं है, Saturday. 29 सैटरडे. वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. Okay. ट्यूसडे को ही फॉलो करना आप लोग. एंड आई विल टेल वकार टू एक्सटेंड द डेट आल्सो ऑफ दिस थिंग, थोड़ा एक दिन टेस्ट का, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है आप लोग का. तो सैटरडे संडे की जगह जो लोग सैटरडे को दे रहे हैं उन लोग को मंडे तक हम लोग थोड़ा टेस्ट टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं. दूसरा मैं क्या कह रहा था कि हमारा EMI जो है ये वीक में खत्म हो जाएगा. अच्छा, एक चीज मुझे बतानी है. संडे इवनिंग, व्हाट इज संडे इवनिंग, व्हिच लेक्चर इज देयर? राम sir. नहीं भाई, राम सर नहीं यार, मेरे लेक्चर के बारे में बात. अच्छा वो. ओके, HSC का लेक्चर होता है. हेलो, Yes, sir. HSC So लेक्चर what will time be sir? 5:30 PM रहेगा. सुनो मेरी बात अभी. ओके, अभी ये HSC लेक्चर में ताहिर सर विल टीच EMI अगेन. अगेन मतलब जिन लोगों को थियरी में दिक्कत है ना, हेलो, he will brush up the EMI again. पूरा रिवीजन हो जाएगा, एकदम सॉलिड रिवीजन. एंड मंडे को I will be doing EMI के सम्स, हेलो, ऑफ द HSC. GTB. बराबर है ना? Yes, sir. तो साथों साथ क्या आपका साथ में EMI का GTB भी खत्म हो जाए. सिमिलर टाइप के सम्स रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स कितना फटाफट किया था हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैट्स के टाइम पे, आपको याद रहेगा जो लोग बैठे थे. ओके, Sir, you will be recording the Sunday lecture. No? हाँ, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. So because we have Ram sir at 6:30 and उससे पहले advance किया. संडे का रिकॉर्डिंग नहीं होगा बेटा. संडे ताहिर सर डजंट हैव द डिवाइस ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली. आपको चाहिए तो यू कैन वॉच माय लेक्चर्स ऑफ EMI ना. So I have that I provided the watched web. sir. हाँ, तो बाकी और ज्यादा रिवीजन थोड़ी कराएंगे. अच्छा, उससे ज्यादा okay. रिवीजन सर विल नॉट डू.
So the website like just covers everything, huh? Everything will be there inside. वेबसाइट में क्या थोड़ा टाइम लगेगा, इधर क्या थोड़ा फटाफट होता है, अंडरस्टैंड? उसमें बैठ के आपको देखना पड़ेगा सब. ओके, बाकी सब तो ठीक है. चलो, थैंक यू वेरी मच. So can you Thank you. confirm advance in the group later? या पूछ लेते हैं ना सबसे, For अगर सब लोग tomorrow, अग्री है, वरना हम लोग फिर ट्यूसडे को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. क्या करेंगे, दूसरा टाइम नहीं है बेटा मेरे पास. ठीक है, चलो. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू. बाय. Bye, sir. Thank you. थैंक यू.